are for another class. So in this class we will discuss about the life cycle of gymnosperm. If we talk about the previous class, in previous class we have discussed the term gymnosperm and the general characteristic features of the gymnosperm. So let's start our lecture. Okay. So today, as I told you, we will learn about the life cycle of gymnosperm. First of all, we have to know that what is life cycle. The whole process which occur in the whole life. That's a life cycle. If we take a general review of this life cycle, then we can understand more clearly. Okay. First of all, if we talk about gymnosperm or any plant, whether it is angiosperm or pteridophyte or bryophyte, or it may be algae also. I have told you earlier that there are two types of plant. One is sporophyte and one is gametophyte. If we talk about the dominating or main plant body in Bryophyta, it's a gametophyte. In Pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, their main plant body is sporophyte. Clear? So, first of all, their main plant body is sporophyte, so we will start their life cycle from the sporophyte. In sporophyte, spore is formed in the sporangia. Clear? In male sporangia, male spore will form, and in female sporangia, female spore will form. This male spore is also known as microspore, and female spore is also known as macrospore. Clear? So in male spore, it's a microspore, and female spore is a macrospore. Further, till this male spore will germinate and form a gametophyte, and this will be a male gametophyte. This will be a male gametophyte. This is a symbol of male, and this will form a female gametophyte. This is a representation of female gametophyte. Further, this male gametophyte and female gametophyte will form a gamete. This will form a male gamete, and this will form a female gamete. Further, these gametes will get fused by the process of fertilization, and zygote will form. Further, zygote after mitotic division converted into a embryo. Further, this embryo is present inside the seed. This embryo is present inside the seed. This embryo is present inside the seed, means the structure which contain the embryo, it's a seed. Further, after the germination of the seed, this sporophyte will form. This sporophyte will form. So, this is the overview of the life cycle of the gymnosperm. So, further in this video, we will continue the brief discussion of this life cycle. Clear? Now we will continue the life cycle of the gymnosperm. So, here the first point is we have to write the main plant body. So main plant body of the gymnosperm is sporophyte.
Clear? Further, as I have told you that spores are of two types, male spore and female spore. Whenever two types of spore is present in any organism, then that condition is known as heterosporic condition. What? Heterosporic condition. Then here we can say gymnosperms have heterosporic condition. Or we can say gymnosperms are heterosporous. In gymnosperm, heterospores is present. Hetero means different, means two different types of spore is present. One is male spore, that's a microspore, and another one is macrospore, or we can say megaspore. Macro or megaspore. This is a female spore. Clear? So two types of spore are present in gymnosperm. Further, the spores are formed inside the sporangia. Means the spores are formed inside the sporangia. इसका मतलब है कि जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम स्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर बनता है. क्लियर है बात? तो एक बात ये भी लिख लेनी है यहाँ पे, स्पोर्स आर formed inside the sporangia. Clear? Okay. Further, as I told you in Pteridophyta that the leaves wears the sporangia. Clear? And that leaf was known as sporophyll. Here also in sporophyll, sporangias are present clearly, and these sporangia are arranged spirally on the axis of the leaf. Clear? So we can say sporangia is present on the sporophyll which are arranged spirally on its axis. अब देखें स्पोरेंजिया पे क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है, स्पाइरली अरेंज होता है. स्पाइरली मतलब हाँ ऐसे कुछ ऐसे मोड़ इस आकार में अरेंज होता है. मीन जैसे लीफ है तो एक स्पोरेंजिया इधर होगा, दूसरा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तीसरा इधर, ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, जिसके वजह से एक कोनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन. जब ये स्पाइरल होते हैं तो क्या होता है, एक कोनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. क्या हो जाता है, कोनस मतलब कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम सिंपल कोन बोलते हैं, या फिर बहुत सारे बॉटनिस्ट जो है वो कोन वर्ड प्रेफर नहीं करते हैं ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोन जैसा नहीं मिलता है ना, बिल्कुल कोन नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है. इसलिए बहुत सारे बॉटनिस्ट कोन ना बोल के उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई. क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई एक्सिस, एंड forms a cone or strobilli. ठीक है. So this was about the sporangia. Clear?
सो अब हमें याद क्या रखना है, अब सिंपल सा मैं बोलूंगा कोन, मेल कोन, फीमेल कोन, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पोरेंजिया। अब मैं बार बार स्पोरेंजिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्पोरेंजिया क्या स्पाइरली अरेंज होते हैं, जैसे क्या एक ग्रुप का फॉर्मेशन, जैसे एक पत्ती पे स्पाइरली अरेंज है तो ऐसा लगता है क्या पूरा एक ग्रुप बन गया, ठीक है। और ये कोनस, कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। तो ये बात याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म में कोन बनता है या स्ट्रोबिलाई पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में स्ट्रोबिलाई बनता है लेकिन सब में नहीं, कुछ में, जैसे कि इक्विसेटम, इक्विसेटम में स्ट्रोबिलाई मिलता है, और जिम्नोस्पर्म के सारे मेंबर में स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द इक्विसेटम एंड जिम्नोस्पर्म। तो इक्विसेटम जो कि टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी बोलोगे दे बोथ हैव स्ट्रोबिलाई और कोन। बात क्लियर हुई? अब देखें ये कोन दो तरीके का हो सकता है, तो अगर मेल के अंदर है मेल कोन और फीमेल के अंदर है फीमेल कोन। अब देखें मेल और फीमेल कोन जो है ये क्या होता है, मतलब जितने भी लगभग जिम्नोस्पर्म है, सारे जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मेल और फीमेल कोन पाया जाता है। एक्सेप्शन है क्या, आपका साइकस। साइकस के पास फीमेल कोन एब्सेंट होता है, साइकस के पास केवल मेल कोन होता है, फीमेल कोन एब्सेंट होता है। तो यहां लिख लेंगे स्टार बना के, इन साइकस फीमेल कोन इज एब्सेंट, इन साइकस फीमेल कोन इज एब्सेंट। मतलब उनमें फीमेल कोन मतलब स्पाइरली अरेंज नहीं होता, बस स्पोरेंजिया होता है, बस स्पोरेंजिया होगा, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होगा, ठीक है। लेकिन उनका क्या होगा, स्पाइरली अरेंज नहीं होगा, इसलिए कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको कोन नहीं बोलते हैं। कोई कोन के डेफिनेशन पूछे आपसे तो सिंपली ये भी बोल सकते हो क्या, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया विच आर स्पाइरली अरेंज्ड। तो ये क्या होता है, स्पोरेंजिया का ग्रुप होता है जो कि स्पाइरली अरेंज है, क्लियर। तो मेल और फीमेल कोन, ये भी बोल सकते हो मेल कोन ही फर्दर देखोगे, मेल कोन के अंदर ही तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनेगा, फीमेल कोन के अंदर ही तुम्हारा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग बनेगा। तो वो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ये फीमेल। अब हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं ना, ये पांचवा पॉइंट भी चौथे पॉइंट से हम लिंक करके ही पढ़ेंगे ना, चीजों को हम लिंक करके ही पढ़ेंगे ताकि क्या हो, चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए हमने पढ़ा था मेल और फीमेल कोन। अब देखिए जो मेल और फीमेल कोन है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशंस बनती है, देखिए जो मेल कोन और फीमेल कोन है ये या तो एक प्लांट के ऊपर हो सकता है, या तो हो सकता है ये अलग अलग प्लांट पे हो, दोनों कंडीशन बन सकती है। इट मे बी प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट और इट मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो देखें जब भी जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जब सेम प्लांट पे होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस। और जब दो अलग अलग प्लांट पे होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसियस। क्लियर बात, फिर से बोलो तो मोनोसियस when reproductive organ present on same thallus or same plant body, and when the reproductive organ that is male and female are present on different thallus or different plant body, that's a dioecious, and previous one was the monoecious. Now the example of monoecious and dioecious. Here in gymnosperm there are ample of example, but here we will discuss only two example, one for monoecious, one for dioecious. So for monoecious and a dioecious, so Pinus is a monoecious and dioecious example is Cycas. Now we will move towards the next point. Now we have studied that male cone and female cone will forms the spore.
Now listen carefully. Inside the female cone and inside the male cone, spores are formed. In male cone, male spore will form. In female cone, female spore will form. And these spore will further germinate inside the cone, and they will form the gametophyte. In the female cone, female spore will form female gametophyte, and in the male cone, male spore will form male gametophyte. Clear? Here we have seen that the spore which is formed inside the cone itself, it will germinate inside the cone. Means the spores are germinate inside the cone. It is not germinating outside the cone. So this type of germination is known as endosporic germination. Endo means अंदर, sporic means spore. जब भी स्पोर का जर्मिनेशन अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोस्पोरिक. अभी तक हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स तक, स्पोर का जो जर्मिनेशन था वो कहाँ होता था? आउटसाइड द प्लांट बॉडी ना. लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि स्पोर का जर्मिनेशन जो है वो कहाँ है? विद इन द प्लांट बॉडी है. तो इसे क्या बोलेंगे? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन. क्लियर? पक्का? चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं. पॉइंट क्या लिखेंगे? इनसाइड द cone spores are formed. अब देखिए मैंने बताया था कि स्पोरेंजिया ही क्या था? जब स्पाइरली अरेंज में जाता था क्या कहलाता था? कोन. तो स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर बनता था ना. कोन भी तो स्पोरेंजिया है, बस इसमें ग्रुप आ गया है. तो इनसाइड द कोन स्पोर्स आर फॉर्म. क्लियर? अब लिखेंगे इन मेल कोन माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड एंड इन फीमेल कोन मेगास्पोर विल फॉर्म. अब देखें ये स्पोर बनता कैसे है. हमने पढ़ लिया कि कोन के अंदर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? ध्यान से समझिएगा. मैं एक चार्ट के फॉर्म में बना रहा हूं. कोन के अंदर होगा स्पोर मदर सेल. कोन के अंदर क्या होती है? स्पोर मदर सेल. इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा. इससे बनेगा क्या? स्पोर. इससे बनेगा स्पोर. यहां पे क्या होगा? मियोसिस. यहां पे क्या होगा? मियोसिस. तो inside the cone, spore mother cells are present, which after the meiotic division forms the spore. If this cone will be a female cone, then this will be a female spore mother cell, and after meiosis, female spore will form. And if this cone will be a male cone, then here male spore will form, or we can say microspore will form. Clear? So this was the overview how the cone will form the spore. No? So further we will move after this. So inside the cone spores are formed. You have seen that how spores are formed. Clear? So further, as I told you that these spores germinate inside the cone. These spores germinate inside the cone. Further, we can say after this, these spores are germinate inside the cone, inside the cones, and forms the gametophyte and forms the gametophyte. This condition is known as, बताया था, this condition is known as क्या बोलते हैं?
अगर स्पोर अंदर ही बॉडी के अंदर ही जर्मिनेट कर जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते थे? एंडोस्पोरिक कंडीशन। वेरी गुड, एंडोस्पोरिक कंडीशन। तो इस फॉर्म में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है? तो आप बोलोगे हाँ, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, या फिर बोले एंडोस्पोरिक कंडीशन होता है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो इन बातों को आप याद रखिएगा। इन्हीं बातों को मैं जब एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा तो वहां रिलेट कराऊंगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा ना। एंजियोस्पर्म में ये पूरा देखने को मिलता है, बस कौन की जगह लिख देंगे ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होगा क्या? स्पोर मदर सेल ना। अब स्पोर मदर सेल कैसे बनती होगी? देखो, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, मतलब और सेल के मुकाबले वो थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, और उनका ग्रोथ रेट देखा जाए तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब उसके वजह से उसमें हो जाता है मियोसिस। अब मियोसिस के बाद बनते हैं क्या? स्पोर। स्पोर फर्दर जर्मिनेट करेंगे और गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर ये लिख लिया हो तो मैं दिखाऊं, ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं कैसे जर्मिनेट करते हो, ठीक? चलिए लिख लिया, चलिए आगे। तो अब देखो, मैंने क्या लिया? एक स्पोरेंजिया लिया। कौन से? हमने एक स्पोरेंजिया निकाला। स्पोरेंजिया ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब स्पोरेंजिया में बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। स्पोरेंजिया बहुत सारी सेल्स है। अब कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी? मॉडिफाई हो जाएंगी, फूड स्टोर करके थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। मैं दिखा दे रहा हूँ उधर। मैं सारी सेल्स नहीं बनाऊंगा, बस इस किनारे मैंने दिखा दिया और एक बड़ी सी सेल दिखा दिया। अब ये सेल्स देखो, बड़ी दिख रही है आपको? ऑफ कोर्स बड़ी दिख रही है। अब इस सेल को हम बोलेंगे क्या? स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। फर्दर आगे बात करें इसके आगे। अब देखो होगा क्या, ये सेल के अंदर होगा मियोसिस, इस सेल के अंदर होगा मियोसिस, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ओवरव्यू लिया था। मियोसिस, मियोसिस के बाद बनेंगे 4 सेल। मियोसिस के बाद बनेंगे 4 सेल। अब देखो, 3 सेल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। 3 सेल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट, खत्म हो जाते हैं। तो इनका नाम होता है नॉन फंक्शनल, मतलब इनका कोई फंक्शन नहीं रहा, तो नॉन फंक्शनल सेल। यहाँ पे स्पोर भी बोल सकते हैं। तो नॉन फंक्शनल स्पोर और ये फंक्शनल स्पोर। क्या बात क्लियर हुई? हाँ, ये फंक्शनल स्पोर। अब फर्दर ये तीनों डीजनरेट होती है और इसको क्या कर देती हैं? इसको जो भी इसका उनका न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको सप्लाई कर देती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। फर्दर आगे बात करें। अब आगे नॉन जो फंक्शनल स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा ना, ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो मैं अब केवल इसी को दिखा रहा हूँ, फंक्शनल स्पोर को। इस स्ट्रक्चर को मैं हटा दे रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है उसको मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। ये समझ लो फीमेल कोन ही है, फीमेल कोन को मैंने हटा दिया, ठीक है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर ही तो फीमेल कोन होगा, तो चाहे फीमेल कोन बोलो चाहे स्पोरेंजिया, तो समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत। तो मैंने क्या किया? इसी स्ट्रक्चर को मैं नहीं दिखा रहा हूँ और ये 3 डीजनरेटर बचा कौन? यही, तो इसी को मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो, इसको बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ा हो भी जाएगा जब न्यूट्रिएंट देगा, तो बड़ा करके इसी को दिखा रहा हूँ फंक्शनल स्पोर में, ठीक है। अब होगा क्या फंक्शनल स्पोर में? नहीं, ये जो सेल है कौन सी? फंक्शनल स्पोर सेल। इसमें होगा माइटोसिस। इसमें क्या होगा? माइटोसिस। लेकिन माइटोसिस किसका होगा? इस न्यूक्लियस का, मतलब माइटोसिस डिवीजन के अंदर सेल डिवाइड नहीं होगा, केवल क्या होगा? अभी न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो बोले तो इनकम्प्लीट माइटोसिस होगा। ये जो एक ये सेल है तुम्हें दिख रहा है फंक्शनल स्पोर, ये तो एक सेल ही है। हाँ, बीच में क्या दिख रहा है? ये डॉट मतलब न्यूक्लियस है। माइटोसिस से न्यूक्लियस एक था, अब कितना हो जाएगा?
2, एक था न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 2। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस में क्या 2 सेल बन जाती हैं, एक न्यूक्लियस इसके पास एक न्यूक्लियस इसके पास। फर्दर क्या होगा, अब माइटोसिस में हमें पता है माइटोसिस में होता क्या है, जो भी सेल्स बढ़ती हैं उनके चारों तरफ क्या आती है, वॉल आ जाती है। अरे माइटोसिस ऐसे मैंने पढ़ाया था, इससे 2 सेल बनेंगे ये, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे यही तो है, अभी दोनों की तरफ सेल वॉल नहीं आई है। अब क्या होगा, इन दोनों सेल की तरफ ये एक तरफ मूव कर जाएंगी, ये एक साइड मूव कर जाएंगी, ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ मूव कर जाएंगी और इनके चारों तरफ क्या आ जाएगी, कवरिंग आ जाएगी, ऐसी कवरिंग। ठीक है, तो ये बन गई। अब एक तो बड़ा सा दिख रहा है, वो तो पूरा सेल है ही है ना, और उस बड़े वाले के अंदर 2 छोटी छोटी सेल्स बन गई हैं। एक तो कहलाएगी एग, क्या कहलाएगी, एग, जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमीट। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट। और ये कहलाएगा एंडोस्पर्म मदर सेल। क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्म मदर सेल। अब देखें, ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एग और क्या एंडोस्पोर मदर सेल है, ये कहलाता है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटो मतलब गैमीट से, फाइट मतलब प्लांट, तो ऐसा प्लांट जो गैमीट बना है वो क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट। ऐसा प्लांट जो गैमीट बना है क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट। तो देखो गैमीट बना रहा है, एग ही तो गैमीट है, तो ये कहलाएगा गैमेटोफाइट। देखो यही स्पोर ये जो है, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या था, मेन प्लांट नोड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पास क्या था, कोन था, कोन के अंदर स्पोरेंजिया थे। स्पोरेंजिया को मैंने दिखाया, ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, कुछ सेल्स क्या मॉडिफाई हो गए ना, न्यूट्रिएंट लेके थोड़े मोटे हो गए, और क्या कहलाए, स्पोर मदर सेल। इसमें हुआ मियोसिस, 4 बने, 3 डीजनरेट कर गए, नॉन फंक्शनल कहलाए, एक फंक्शनल था जो आगे वर्क करता वो कहलाया फंक्शनल स्पोर। इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से केवल क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। तो यहाँ एक न्यूक्लियस था पहले, अगर फंक्शनल स्पोर की बात करें तो इसके पास एक न्यूक्लियस है, 2 बन गया। अब होगा क्या, दोनों एक तरफ मूव करेंगे, दोनों के चारों तरफ क्या जाएगी, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कहलाएगा एग और दूसरा कहलाता है एंडोस्पोर मदर सेल। क्लियर हुई बात। अब ये जो स्ट्रक्चर है गैमीट बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यानी कि स्पोरोफाइट के अंदर ही बोले तो स्पोरोफाइट, उसके कोन और स्पोरेंजिया, उसी के अंदर ही क्या बन गया, स्पोर जनरेट किया और फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। बोले तो गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल भूल जाओ तो गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। अब अंदर ही बन गया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन या फिर एंडोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं। बात क्लियर हुई। हाँ, एक बात यहाँ पे और याद रखनी है, क्या ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, तो हम एक नाम से और पुकारते हैं, बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो एक बात ये है कि जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है और एंजियोस्पर्म में भी क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। मतलब पॉलिनेशन जब होगा तो उसके बाद मेल गैमेट आएगा, इस एग से फ्यूज करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में पहले बनता है, एंजियोस्पर्म में बाद में बढ़ता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सुनिएगा ध्यान से। स्पोरोफाइट बना है कहां से, जाइगोट से, जाइगोट फिर एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट। यानी कि इसकी सारी सेल रही होंगी 2n, ये सेल भी रही होगी 2n। इस सेल में जब मियोसिस होगा ये n, ये n, ये n, ये n। देखो मियोसिस से 4 बनते हैं, मियोसिस से 4 बनते हैं ना। अभी तक जो 9 क्लास से नीचे हैं उनको बताया गया होगा कि अभी सेल डिवीजन होता है तो 2 हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, माइटोसिस से तो 2 ही बनते हैं, लेकिन मियोसिस से 4 बनते हैं। मियोसिस से 4, सारे में n आ जाते हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 ही n है,
तो n आना चाहिए, तो 4n कैसे आ गया? बताया था रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन। तो 2 था, जब इसका डुप्लीकेट कॉपी बनेगी तो कितना हो जाएगा? 4, एक एक सब में चला गया। क्लियर हुई बात? हाँ, सिंपली ऐसे समझ सकते हो। तो ये 4n आ गया, ठीक है। अब ये 3 डीजनरेट करके खत्म, यही बचा, और ये भी इसके पास क्या है? n, तो ये भी क्या है? n। अब यहाँ माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से n पे कोई असर पड़ता नहीं है, जो रहेगा वो सेम रहेगा। समझ आया? तो अगर ये n है तो ये भी क्या होगा? n, और ये भी क्या होगा? n, और ये भी क्या होगा? n। अरे ये पूरा भी तो n ही हुआ। समझ आया? बात करें जिम्नोस्पर्म का, जो एंडोस्पर्म है ये बनता है फर्टिलाइजेशन के पहले, और एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन के बाद। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब n होता है, और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3n होता है। बात क्लियर हुई? हाँ, तो ये राइट कर ले। ऐसे ही कुछ मेल वाला भी बनता होगा, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले लिख लें। चलिए अब 7th पॉइंट की बात करते हैं। देख, अब अभी तक हमने क्या बना लिया? फीमेल गैमेट बना लिया। अब बनाएंगे क्या? मेल गैमेट। देखो सेम प्रोसेस होगा जैसा प्रोसेस हुआ, स्पोर मदर सेल वहां भी होगा, ठीक है, और उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस से बनेगा क्या? यहाँ बना था मेगा स्पोर, देखो फीमेल का बना था तो फीमेल स्पोर को लिया तो मेगा स्पोर, इसमें बनेगा माइक्रोस्पोर, इसमें बनेगा माइक्रोस्पोर। बस चेंज कहाँ आने? देखो इसमें क्या था? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दो पार्ट में थे ना, लेकिन उसमें सारे फंक्शनल होंगे, उसमें चारों के चारों जिंदा रहेंगे, और चारों के चारों चल के आगे क्या मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखो अब क्या लेना हमें? मेल कोन लिया, ठीक है। मेल कोन में आगे क्या होगा? स्पोर मदर सेल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे यहाँ था मेल कोन बोलो या फिर बोलो स्पोरेंजिया, कोन के ऊपर ही तो स्पोरेंजिया होता है। अब इसमें होता था मियोसिस, इसके मियोसिस से स्पोर बनेंगे और 4, स्पोर, ठीक है। अब ये स्पोर जो है चारों के चारों फंक्शनल रहेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोफाइट में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैमेटोफाइट में, ठीक है। अब उनका जो फीमेल गैमेटोफाइट था ना, उसको हमने क्या बोला था? एंडोस्पर्म, ठीक है। जो मेल गैमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म में, ये कहलाता है पॉलन ग्रेन। क्या कहलाता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। समझिएगा बात? मेल कौन? स्पोर मदर सेल होगा, उसमें मियोसिस होगा, 4 स्पोर बनेंगे जैसे यहाँ। अब स्पोर फर्दर मॉडिफाई हो जाएंगे और कहलाएंगे क्या? गैमेटोफाइट। क्या कहलाएंगे? और इसमें भी तो मॉडिफिकेशन हुआ था, वही जर्मिनेशन, मतलब सेल विल डिवाइड होंगे, तो इनका भी सेल आगे डिवाइड होगा, लेकिन इनिशियली लगभग मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जो गैमेटोफाइट है मेल वाला, उसमें क्या इनिशियली एक ही न्यूक्लियस होता है। जब वो पॉलिनेशन के लिए जाते हैं तब उनका जो गैमेट है वो बोले तो ये जो है बीच में न्यूक्लियस, ये डिवाइड होगा, फिर बनता है गैमेट। यहाँ फीमेल गैमेट पहले बन गया, अभी दिखा मैं, इनमें फीमेल जो मेल गैमेट है वो बाद में बनता है, क्लियर? हाँ, तो यही जो स्पोर था ये फर्दर मॉडिफाई हो जाएगा, कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट, या फिर इसका नाम होगा पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे? मेल हैव हाईली reduced gametophyte known as pollen grain। नाम याद रखिएगा ना, कुछ बच्चे पढ़ भी चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा pollen grain के बारे में। और सेम यही प्रोसेस ऐसे, बस यहाँ पे स्पोर जो लिखा है वहां पे स्पोर नहीं लिखा जाएगा इंग्लिश में, सीधा लिखा जाएगा pollen grain ना। हाँ ठीक है। अब
एक चीज और भी लिख लो, ये मेल स्पोर है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोर। बताया था इनिशियली पहले, तो वहां पढ़ा जाएगा कि माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन बोलेंगे। हालांकि आपने अभी शुरुआत की है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने बताया मॉडिफिकेशन से पॉलन ग्रेन बन जाएगा। हालांकि माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो एकदम चीज़ों को क्लियरिफाई करना, जो भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो हाईली रेडियोस गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। क्लियर हुई बात? सो ये मेल की बात थी। अब पॉलन ग्रेन यहाँ बन गया, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मेल कोन से पॉलन ग्रेन निकलेगा और फीमेल कोन पे जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यही चीज जब हम जिम्नोस्पर्म से निकल के एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, वहां जब पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन में मेल और फीमेल को नहीं बोलेंगे, वहां हम बोलेंगे क्या, हाँ, एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन अगर यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, सिंपल से लिखेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ पीजी मतलब पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल कोन टू फीमेल कोन। मेल कोन से कहाँ जाएगा, फीमेल कोन पे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखो जो पॉलिनेशन होता है, इस प्रोसेस को कराने के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन जैसे वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है, एनिमल के थ्रू हो सकता है। तो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मेनली इन तीनों में से, जो अभी बताया मैंने, इन तीनों में से इसके अंदर विंड वाला क्या होता है, बहुत कॉमन होता है। तो मेनली इनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड। लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे 8वां कि पॉलिनेशन अकर वाया विंड। तो विंड के थ्रू इनके अंदर पॉलिनेशन होता है, और जिसके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। तो पॉलिनेशन थ्रू विंड नोन एज एनिमोफिली। पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, हालांकि 2 साल पहले नीट के एग्जाम में, ठीक है, पूछा गया था पॉलिनेशन वाया विंड नोन एज, ऐसे था, ऑप्शन 4 दिए गए थे, एंटिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है। तो एनिमो मतलब ऐसे लगता है कि एनिमल की वजह से होता होगा, नहीं, एंटिमोफिली होता है एनिमल की वजह से, ठीक है। तो अगर विंड के वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो कहलाता है एनिमोफिली, याद रखिएगा। क्लियर? लिख लो। चलिए अब पढ़ेंगे 8वां पॉइंट। समझिए, देखिए ये जो पॉलन ग्रेन था, ये जब ट्रांसफर होगा, पॉलिनेशन जब होगा इसका, जब ये पहुंचेगा किसके पास, फीमेल कोन के पास। किसके पास, फीमेल कोन। पॉलिनेशन प्रोसेस ऑफ कहां पहुंच गया, फीमेल कोन के पास, ठीक है। जब ये पहुंचेगा फीमेल कोन के पास तो होगा क्या, यहां से बनेगी पॉलन ट्यूब। यहां से बनती है पॉलन ट्यूब। क्या बनती है, पॉलन ट्यूब। अब इस फीमेल कोन के पास होता है ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। इसके पास क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब आएगा और इस ओव्यूल के अंदर जाएगा, जहां से, जिस पोर्शन से अंदर घुसता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। घबराए नहीं, ये चीजें अच्छे से पढ़ेंगे जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना, अभी समझते चले। तो माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर घुसेगा। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है वो देखें। ओव्यूल के अंदर जो हमने बनाया था गैमेटोफाइट वो बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या होगा, एग होगा, और ये क्या होगा, एंडोस्पोर जनरेटिंग सेल, या फिर बोले एंडोस्पोर मदर सेल। इसके चारों तरफ सेल्स भरी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। और ओव्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है
ओव्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, सेलुलर कवरिंग, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट एक ही होती है, केवल आउटर होती है, ठीक है, इनर नहीं होती। अब देखिए पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब से ये जो न्यूक्लियस था आएगा, न्यूक्लियस रास्ते में 1 से 2 हो जाएगा, न्यूक्लियस रास्ते में 1 से 2 हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है रास्ते में 1 से 2 हुआ है, अब ये कहलाने लगेगा मेल गैमीट। क्या कहलाने लगेगा? मेल गैमीट, ठीक है। अब ये मेल गैमीट आएगा। अब देखिए ये तो होता है बिल्कुल, ये जो ओव्यूल दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा ओव्यूल इनके पास नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है पोलन चैम्बर। क्या होता है? पोलन चैम्बर। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की तो यहाँ पे होता है पोलन चैम्बर, यहाँ पे होता है पोलन चैम्बर। ये गैमीट आएगा और यहीं पे आके इकट्ठा हो जाएगा, पोलन चैम्बर के पास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा? एक गैमीट तो अंदर चला जाएगा, फ्यूज कर जाएगा एग से, एक गैमीट अंदर जाएगा और फ्यूज कर जाएगा एग से, लेकिन जो दूसरा गैमीट है ये यहीं रह के डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुनिए, मेल गैमीट 2 बनते हैं, एक तो एग से फ्यूज कर जाएगा ना, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना लेगा, लेकिन दूसरा जो गैमीट है वही पोलन चैम्बर में रह के खत्म हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोफर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट में देखेंगे तो वहां आता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म का, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। बात क्लियर हुई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये एग से क्या होगा? मेल गैमीट फ्यूज होगा, एग था, इससे क्या हुआ? मेल गैमीट फ्यूज हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? फीमेल गैमीट। हालांकि ये जो एग है इसका एक नाम और दिया जाता है, आर्कीगोनिया भी कहते हैं, आर्कीगोनिया, ठीक है, आर्कीगोनिया भी कहते हैं। एग को हम एक नाम से और जानते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, एंजियोस्पर्म में नहीं। जिम्नोस्पर्म में एग ना लिखा हो, आर्कीगोनिया लिखा हो, तब भी समझ जाना है फीमेल गैमेट की बात कर रहा है। इससे फ्यूज करेगा और बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। इस मतलब जब भी क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से क्या करता है? फ्यूज करता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। अब जैसे फर्टिलाइजेशन होगा धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होने लगेगा, ये दोनों मिल गए तो जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अंदर चल रहा है, इससे एक्स से फ्यूज हुआ मेल गैमीट, जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया, ये तो अंदर चल रहा है ओव्यूल के अंदर। लेकिन ओव्यूल के बाहर भी मॉडिफिकेशन होता रहता है, ओव्यूल के बाहर भी मॉडिफिकेशन होता रहता है। वो क्या होता है? ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ओव्यूल पूरा कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ये एम्ब्रायो सीड के अंदर रह गया, ये एम्ब्रियो सीड के अंदर रह गया, जो फ्यूज होके ये एम्ब्रियो बना, ये सीड के अंदर रह गया, ठीक है। और ये बन गया सीड। अब ये जो इंटेगुमेंट है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड कवरिंग में। ये सीड, इसको बोलते हैं सीड कोट या सीड कवरिंग, कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में। बताओ इंटेगुमेंट कितनी थी? बताई थी, एक थी, बताया था मैंने, एक थी बाहर की, आउटर ना, तो ये सीड कोट रह जाता है। और आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। जो नॉर्मल सीड है अपने पास, उसके पास 2 कवरिंग होती है, मतलब एंजियोस्पर्म की जो कवरिंग है वो इसके पास होती है 2 कवरिंग, टेस्टा और टेगुमेंट। इसके पास केवल एक कवरिंग होती है, कौन सी? टेस्टा, क्योंकि इंटेगुमेंट इसके पास एक ही है। एंजियोस्पर्म में इंटेगुमेंट 2 होती है, तो इसलिए वहां पे सीड कोट भी डबल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके पास होगा कॉटलिड, ठीक। अब ये जो आपको दिख रहा है सीड, हाँ, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? कोई पूछे तो बोल बता सकते हैं। सीड के पास होता है कॉटलिडन, क्या है? तो सीड के पास क्या होता है? कोई आपसे पूछे सीड के पास क्या होता है तो कॉटलिडन, ये एम्ब्रायो, साथ साथ
सीड कोट जो है, और ये जो माइक्रोपाइल है, ये जो माइक्रोपाइल था माउथ ना, जिसके थ्रू पॉलन, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन को जनरेट करा के जो आगे ले जाएगा उसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब। हाँ, तो पॉलन ट्यूब जहाँ से अंदर करता था ओव्यूल में, उसे क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल सीड के पास होगा क्योंकि सीड ही ओव्यूल से बना है, तो इसके पास भी क्या होता है? माइक्रोपाइल। क्या होगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब होता है माउथ, समझो। माइक्रोपाइल का मतलब माउथ समझो, माइक्रोपाइल। ठीक है, अब माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है यहाँ पे? देखो, जो भी सीड है उसको अगर जर्मिनेट करना है, ठीक है, तो क्या चाहिए? वार्म चाहिए, वार्म चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और सनलाइट तो चाहिए ही। अब वाटर और एयर की बात करें, ठीक है, वो कहाँ से सीड के अंदर जाता होगा? वो जाता है किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। अरे जब सीड तुम स्टोर करते हो फिर भी वो रेस्पायरेशन करता है। सीड जिंदा रहने के लिए क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है, ठीक है। हालांकि वो रेस्पायरेशन बहुत लो रेट का होता है ना, फिर भी सर्वाइव रहने के लिए वो क्या करता है? उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू क्या करता है? रेस्पायर करता है, ठीक है, या फिर वो ब्रीथ करता है। ठीक, पक्का? तो ये सीड का स्ट्रक्चर है और ऐसे फॉर्मेशन होगा सीड का। तो हमने देखा सीड बना ना, सीड लेकिन क्या होता है? नेकेड होता है। ये क्यों बोला? इसीलिए तो जिम्नोस्पर्म बोला। देखो, इसमें कोई ओवरी दिख रही है? मैंने दिखाया आपको ओवरी? नहीं दिखाया। तो ओवरी नहीं है तो मतलब सीड कैसा है? नेकेड, चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं है। और अगर ओवरी नहीं है तो मतलब फ्रूट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और बात करें इस कॉटलीडन की, इसके भी फंक्शन देख लेते हैं। जो कॉटलीडन है ये सिंपल इसका फंक्शन होता है क्या? इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करता है, फर्दर जब एम्ब्रियो ग्रो करे तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। हाँ, अब एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो कॉटलीडन के बेसिस पे दो तरीके के प्लांट है, मोनोकॉट, डाइकॉट ना। तो जिसमें दो कॉटलीडन है तो डाइकॉट, जिसमें एक कॉटलीडन है मोनोकॉट। जिम्नोस्पर्म में जो कॉटलीडन का नंबर है वो 4, 6, 8 भी हो सकता है। 4, 6 और उससे ज्यादा, मतलब 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉटलीडन का नंबर वेरी कर सकता है, 4, 6, 8, मतलब 2 से ज्यादा पाया जा सकता है, ठीक। तो इसको उतार लें, आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। Clear? So further we will talk some KKBs related to this life cycle. Okay, let's start. First KKB is winged pollen grain. Winged pollen grain is present in पाइनस। मीन्स पाइनस के पास जो पॉलन ग्रेन होता है उस पे क्या होती है? विंग्स होती हैं। उसके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, लिख लें। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो न्यूसेलस वहां पड़ा था, न्यूसेलस, न्यूसेलस में persist known as पेरिस्पर्म। जो हमने पढ़ा था ओव्यूल के अंदर क्या पढ़ा था? सेल्स पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस सेल। तो जो न्यूसेलस है वो फर्टिलाइजेशन के पास बाद क्या होता है? जनरली क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो कभी कभी क्या परसिस्ट कर सकता है, और जिम्नोस्पर्म में, मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में ये परसिस्ट करता है। और फर्टिलाइजेशन के पहले उसका नाम होता है न्यूसेलस, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सीड के अंदर आ जाता है, रह जाता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है? पेरिस्पर्म। ये अगर
एंजियोस्पर्म की बात करें तो क्योंकि जिम्नोस्पर्म आपने सीड देखा नहीं होगा, चिलगोजा देखा होगा? नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो अगर बात करें एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल की जिसमें पेरिस्पर्म रहता है, तो आपने देखा होगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च देखा होगा। काली मिर्च को जब पीसते तो अंदर अंदर से कुछ व्हाइट कलर का निकलता है, देखा नहीं देखा? हाँ, तो वो क्या होता है एक्चुअली पर्सिस्टेंट न्यूसेलस ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से रखते हैं। अगले सवाल की बात यह है, सीड ऑफ पाइनस इज known as चिलगोजा। सीड होता है जो पाइनस का जो सीड होता है वो क्या कहलाते हैं, चिलगोजा। इसका हम इस्तेमाल भी करते हैं एज अ फूड के लिए, समझे? चिलबिल आपने सुना होगा, चिलबिल, हाँ, कुछ उसी वैरायटी का होता है क्या, चिलगोजा। समझ आ रही बात? हाँ, मतलब उसी वैरायटी, मतलब उसी का स्पीसीज है, प्रजाति का है चिलगोजा ना। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, चिलबिल जैसा नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है बादाम शेप का होगा, जैसा बादाम होता है ना, बादाम का भी देखा हो, बादाम जैसा होगा चिलगोजा, ठीक है। और चिलगोजा की बात करें तो ये क्या होता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें कर ले तो चिलगोजा इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। साथ साथ ये क्या होता है, हाईली मतलब बोले तक एनर्जेटिक होता है। चिलगोजा की बात करें तो ये क्या होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, और इसमें शुगर का अमाउंट क्या होता है, लो होता है। मींस अगर शुगर की पेशेंट इसको यूज करें तो क्या होगा, उनका शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है, ठीक है, और क्या उनको न्यूट्रिएंट्स भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं ना। तो इट इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक। अगला है स्टेम पल्प ऑफ साइकस नोन एज सागो। देखो, साइकस की स्टेम से जो पल्प निकलता है, ठीक है, वो रिच होता है किसमें, स्टार्च में। रिच होता है किसमें, स्टार्च में। जो साइकस का पल्प होता है, स्टेम पल्प, वो रिच होता है स्टार्च में, ठीक है। तो उसका नाम हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सागो ना। अब सागो को हिंदी में बोले तो बोलते हैं साबूदाना। क्या बोलते हैं, साबूदाना। तो जो साबूदाना आपको मिलता है, जो व्रत में आप लोग इस्तेमाल करते हैं फास्ट में, वो क्या होता है, साइकस के पल्प से ही बना होता है, ठीक है, सागो। अब साइकस से मिलता है, बनता है क्या, सागो, इसलिए साइकस को एक नाम से और बोलते हैं, दैट्स व्हाई साइकस इज नोन एज सागो पाम। इसलिए हम साइकस को क्या बोलते हैं, सागो पाम। बात क्लियर हुई? पक्का? ओके, फाइन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट कमाल की बात देखेंगे हम लोग। देखेंगे क्या कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है, ज्यादा एडवांस है, मतलब जिनका कैरेक्टर क्या है, और जिम्नोस्पर्म के मुकाबले थोड़ा सा और एडवांस है, ठीक है। तो वो है क्या, नीटेल्स, जिसका एग्जांपल है नीटम, एफेड्रा। ये सब क्या है, मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है। क्यों इनको एडवांस बोला जाता है, देखो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होता है, बाकी सारे जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है। साथ साथ इनके पास आर्किगोनिया नहीं होता है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनके एग को आर्किगोनिया भी बोलते हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया था कि एंजियोस्पर्म के एग को आर्किगोनिया नहीं बोलते, उसको एग ही बोलते हैं ना। तो नीटम, एफेड्रा, ये क्या है, मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। क्लियर हुई बात? लिख लेते हैं, नीटम एंड
ephedra are considered as advanced gymnosperm because their xylem contain vessels and they do not have archegonia. They do not have archegonia. तो एडवांस क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके पास आर्केगोनिया नहीं होता है. इनके पास क्या होता है? एग होता है. इनके पास क्या होता है? एडवांस क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके पास आर्केगोनिया नहीं होता है. इनके पास क्या होता है? एग होता है. क्लियर हुआ? हाँ. लेकिन नीटम और एफेड्रा में दोनों में ये कंडीशन होती है, लेकिन इस कंडीशन की बात करें कि आर्केगोनिया नहीं होता है. नीटम में तो नहीं होता, लेकिन एफेड्रा के अंदर आर्केगोनिया पाए जाते हैं. तो यहाँ लिख लेंगे एक्सेप्शनली आर्केगोनिया इज एब्सेंट इन एफेड्रा. ये बात याद रखिएगा ना. हालांकि इनको भी एडवांस माना जाता है, लेकिन इनके अंदर क्या आर्केगोनिया प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर आर्केगोनिया भी एब्सेंट और वेसल भी एब्सेंट. अब ऐसे सोचो, धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रहा था ना इनके अंदर. मान लेते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, इधर साइकस का एग्जांपल ले लो. देखो क्या साइकस, साइकस के पास क्या होगा? जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होगा और आर्केगोनिया पाया जाएगा. ठीक है. अब धीरे धीरे साइकस से क्या मॉडिफिकेशन हुआ? साइकस से मान लेते बना होगा क्या? ऐसे देखे ध्यान से तो एक क्लियर कट दिख रहा है. साइकस से बना होगा एफेड्रा ना. अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें, साइकस से बना होगा एफेड्रा. तो देखो जब साइकस से एफेड्रा बना होगा तो देखो क्या क्या कैरेक्टर नए आए. देखो साइकस का जो जाइलम में वेसल एब्सेंट वाली कंडीशन थी, इसके अंदर फुलफिल हो गई. ठीक है. लेकिन आर्केगोनिया अभी भी इसके अंदर है, एफेड्रा के अंदर ना. तो इससे थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ कि इसके अंदर वेसल्स आ गई, लेकिन अभी भी आर्केगोनिया प्रेजेंट है. अब इससे इधर जाओ, एफेड्रा से नीटम में देखो तो क्या हुआ? इसके अंदर वेसल है, लेकिन इसके अंदर क्या है? आर्केगोनिया एब्सेंट. यहाँ आर्केगोनिया था, लेकिन यहाँ आर्केगोनिया एब्सेंट. ऐसे देखो धीरे 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 क्या हो रहा है? एडवांसमेंट हो रहा था. देखो साइकस से एफेड्रा, एफेड्रा से नीटम, लगातार एडवांसमेंट चल रहा था इन्वायरमेंट में ना. और इसी नीटम से फर्दर क्या बना होगा? एंजियोस्पर्म. क्या बना होगा? एंजियोस्पर्म. क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स भी होती है और ये आर्केगोनिया भी एब्सेंट होता है, जो इसका नीटम का कैरेक्टर है. बात क्लियर हुई? लेकिन नीटम एंजियोस्पर्म से क्यों अलग है? क्योंकि इसके पास नेकेड सीड है, उसके पास नेकेड सीड नहीं होगा, कवर्ड सीड होगा, इसलिए ये एब्सेंट है. तो धीरे 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 करके ये मॉडिफिकेशन लगातार चलता गया इन्वायरमेंट. बात क्लियर हुई? So this was all about the life cycle of the gymnosperm. In the next video, we will make a chart of the life cycle of the gymnosperm. Clear? If you have any doubt, then write on the comment section. And if you like the video, please press on the like button and also subscribe the channel. Clear? Thank you very much. Have a nice day. Clear? Bye bye.